इंडिया জোটের যে 21 জন সংসদ মণিপুর গিয়েছিল তাদের বিবেক কি একবারও বলেনি যে পশ্চিমবঙ্গ একবার ঘুরে আসি? গোঘাটের কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে দাঁড়িয়ে বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। মঠের ভেতর একটি বাচ্চা ছেলেকেও কোলে তুলে নেন মন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে আজকে আসার সুযোগ পেয়েছি। আজ এখানে এসেছি যেখানে একজন ধর্মগুরু, যেখানে একজন বিচারক এবং একজন মহান সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছিল, যিনি সব ধর্মকে একই মানেন, সম্মান করেন। উনি মানবতার পূজারী, যিনি মানবতাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছিলেন। ওনার অনেক ভক্ত ছিলেন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এরকম একজন। এইটা সেই মাটি যেখানে জন্মেছিলেন সন্ন্যাসীরা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। সেইখানেতেই আজকে মানবতার খুন হয়ে যাচ্ছে, মা বোনেদের ইজ্জত লুটছে। এটা মমতা ব্যানার্জির ইশারাতেই তার পার্টির নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের মারধর ও হত্যা করছে। কোথাও আবার মহিলাদেরকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হচ্ছে এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হচ্ছে। এই পশ্চিমবঙ্গের সরকার পুরোপুরি সরকার চালাতে ব্যর্থ। এখানে আইন কানুন ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে সমর্থন করছেন যারা অপরাধী, যারা দোষী, যারা খুন করতেই ব্যস্ত তাদেরকেই। এত কিছুর পরও বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলকে মুখের উপর জবাব দিয়েছেন। আগেরবার আমরা 5,000-এর একটু বেশি আসনে জিতেছিলাম, এইবারে 11,000-এরও বেশি আসনে আমরা জয়লাভ করেছি। আগেরবারে আমাদের 18 জন সাংসদ জিতেছিল, তো এইবারে আমাদের 30 থেকে 35 জন সংসদ জিতবে। বাংলার জনগণ বলে দিয়েছে, মমতা দিদি আপনার জন্য আমরা দুঃখিত, আমরা ভীত সন্ত্রস্ত। আমরা আপনার বিদায় চাইছি। সামনের লোকসভা ভোটে আমরা নরেন্দ্র মোদীর বিজেপিকেই ভোট দেব। আমি কংগ্রেসকে আর কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরকে বলতে চাইব যে যেখানে আপনাদের লোক মরছে, যেখানে মারধর করছে, সেই রাজ্যে কি আপনাদের কার্যকর্তাদেরকে মরতে দেবেন? আইন ব্যবস্থা ভাঙতে দেবেন? মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তার থেকেও নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের মালদহে। কোথায় গেছে আপনাদের মনুষ্যত্ব? অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে বলবো, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী কখনো কি পশ্চিমবঙ্গে আসবে? যখন মার খাচ্ছিলাম তখন কংগ্রেসের একটা নেতাও এখানে আসেননি। তারা কি রামকৃষ্ণের মাটি, স্বামী বিবেকানন্দের মাটিতে আসবেন? ইন্ডিয়া জোটের যে 21 জন সংসদ মণিপুর গিয়েছিল তাদের বিবেক কি একবারও বলেনি যে পশ্চিমবঙ্গ একবার ঘুরে আসি? এখানকার মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা একবার জেনে আসি। যদি কোর্ট বলে দেয় অনলাইনে নমিনেশন করার জন্য সেখানে নেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, যারা ব্যালট বক্স নিয়ে চলে যাচ্ছে তাদেরকে সিসিটিভি ফুটেজে দেখেও শনাক্ত করে যদি কোর্টের সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়, সেটাও করা হয় না। ছাপ্পা দেওয়ার ভিডিও আপনারা যেটা সবাই দেখেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। পুলিশ বা প্রশাসনের দিক থেকেও তা করা হয় না। এখানে মমতা ব্যানার্জি কোনো শব্দই বলেন না। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে প্রসাদ গ্রহণ করেন ও রামকৃষ্ণ মঠের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। रामकृष्ण परमहंस की जन्मस्थली में आज आने का अवसर भी मिला और वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक महान संत ने, आध्यात्मिक गुरु ने और एक विचारक ने जन्म लिया, जो सभी धर्मों को एक मानते थे, उनका सम्मान करते थे और वो मानवता के पुजारी थे। और जब मैं कहता हूँ मानवता के पुजारी थे तो बंगाल की इस धरती से उस महान संत ने जन्म लिया, जिनके विचारों को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का काम उन्होंने भी और उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायियों ने भी किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी भी थे। ऐसे महान संत ने जहां मानवता को प्राथमिकता दी, आज उसी बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है।
क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस बार 11,000 से ज़्यादा जीते, दुगने से ज़्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहाँ से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके हाथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं। लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? सर एक बात है, 2021 के बाद ऐसे पोस्टल वायलेंस बहुत सारा दिखा गया है बंगाल में, तो सिचुएशन अभी चेंज नहीं होता है बंगाल का, कैसे पंचायत चुनाव में भी? देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि चाहे व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर आप अपना नॉमिनेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर कोर्ट में दिखाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ममता सरकार थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होती है। यहाँ के नालों में, नदियों में बैलेट पेपर पड़े हुए मिलते हैं, तब भी उस पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते लगाते वीडियो सबके सामने आते हैं और आप सब मीडिया के सामने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या सब समझ आता है। लेकिन ममता बनर्जी जी 2 शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। एक मुख्यमंत्री बनके जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई, वहीं पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, व्यापारी पलायन कर रहे हैं और यहाँ में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता के लिए हत्या, इसमें भी पीछे ममता जी की सरकार, पार्टी पीछे नहीं हटती। ये गंभीर आरोप ही नहीं, एक तरह से एक बदनामी जो पश्चिम बंगाल की हुई है कि किस तरह से हत्याएं होती हैं।
किस तरह से महिलाओं का अपराध बढ़ता है। और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री, और हमारे अन्य सांसदों के साथ उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है बंगाल में जो घटा वो मानवता को भी शर्मसार करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई उस पर भी प्रकाश डालता है, और यहाँ की सरकार स्वयं कैसे